राजी कुंवर बजाज यानी RKB, और इस वक्त मेरे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों जैसे हमेशा रहते हैं नेशन नाउ पर आपके साथ हैं, और नेशन नाउ हमेशा ही आपके साथ रहेगा। फिलहाल आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सब लोगों को कोजागिरी पूर्णिमा की बहुत 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 शुभकामनाएं। और जिसने भी पूजा पाठ करना हो, जो भी करना हो, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी आप मांगे आपको मिले। सब लोग सुखी रहें, हर जगह में शांति रहे। प्रदीप जी एकदम द मैसेज ऑफ लव एंड पीस। Yes, and of course there's also a lunar eclipse today. The lunar eclipse has its own particular significance. This time the lunar eclipse is as they say is in the nakshatra of Ketu, Ashwini nakshatra, most powerful nakshatra of Ketu. And they say that since it's at 11:30, and if at 11:30 you have a bath, etc., etc., and you ask for whatever you want, you'll get it at that particular time, because all the forces are out there just waiting to fulfill all your wishes. But be To careful. give everything that you want. Yes, that's the whole point. Be careful what you wish for. You might actually get it. And when you get it, you might realize, hey, I didn't want this at all. So the best thing to do is to leave it up to God. Because God will give you what you need, not what you want. Do understand? There's a big difference between desire and actual needs. So that's what all our saints, all our religious texts, everybody is always emphasized on, Pradeep ji, कि वही चीज़ मांगिए जो जिसकी बहुत खास ज़रूरत हो, जिसकी बहुत आवश्यकता हो, या फिर ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। जिसके ऊपर आप प्रे कर रहे हैं उनको मालूम है कि आपको क्या चाहिए, असल में वास्तविकता में क्या ज़रूरत है आपकी। और महात्मा गांधी जी भी वही कहते थे, नॉट फॉर योर ग्रीड बट फॉर योर नीड। Most important, that is the most important. Otherwise it will be, as in the case of Yajnavalkya, fruitless penance. It will lead to nothing. But maybe one day, very shortly, maybe next week or so, Pradeep ji and I will start a spiritual discussion, a spiritual program as well, all about Indian culture, where it comes from, and what is its significance today, and why we do what we do, including like the basic rituals like pranam and namaste. Why do we do it, and what does it mean, and so on and so forth. I think it'll be interesting for a lot of people. Maybe interesting, or not so interesting for a lot of people. It'll be very interesting for us. I'm sure both Pradeep ji and I would be very engrossed in talking about it. And in case you, our viewers, would like to see it, please do send in whatever you want in your comments. Would you like to see such a program? If you would like to see such a program, please do send in your comments, and we would really try and fulfill it as soon as possible. So Pradeep ji, Pradhan Mantri Narendra Modi ji is on a spiritual quest all around the country. बिल्कुल सर। और आज संस्कृत के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल। और प्रभु राम ही एक प्रेरणा जीवन, एक प्रेरणा है उनके लिए जी। And he always talked about spiritual leadership. Most important. Spiritual leadership that he's learned it from. Then he was always inspired by Garud from Ramayana, who he believed knew that he could not defeat Ravan, but to protect righteousness, lay down his life, took on the mightiest of might. You mean Jatayu? Jatayu. I'm sorry, Jatayu. One day you and I should talk about Kak Bhishundi. Yes. You know, the time traveler. As Kak Bhishundi Maharaj himself says that he has seen 11 Ramayans. He has seen the Ramayana play out 11 times and the Mahabharata play out 5 times. And as he says, the outcome of the Mahabharata has always been the same, but there have been variations in the outcome of the Ramayana. One day we should talk about that. That will be very interesting. That, by the way, is the first ever reference to time travel in any form, anywhere, in any book, anywhere in the world. Kak Bhishundi is a time traveler, remember that, and he's still around. He talks about parallel universes, he talks about the universe within the universe, he talks about the dark universe, stuff that we are talking about only now in scientific terms. But actually, if you study the character of Kak Bhishundi, you'll be able to, you'll be shocked
some people would be shocked to know that all this was there 20,000 years ago right here in India. जी, और आज की तारीख में इस वक्त हमारे साथ हैं आवर ओल्ड फ्रेंड मिस्टर धर्मपाल मेश्रम। धर्मपाल मेश्रम जी किसी कारणवश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग चल रही थी इसलिए कहीं और थे उस दिन, आज हमारे साथ हैं। कोजागिरी पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत बहुत खुश लग रहे हैं सर, लग रहा है ऐसा कि बड़े आज रिलैक्स्ड हैं, बड़े बड़े बहुत बहुत खुश हैं आज। लेकिन थैंक यू सो मच। अच्छा मेश्रम जी, ये बताएं कि आज की तारीख में अगर हम महाराष्ट्र की तरफ देखते हैं तो हर जगह पे ओबीसी एजिटेशन चल रहे हैं, हर जगह पे मतलब इधर से मराठा एजिटेशन शुरू हो गया, उधर से गांगड़ एजिटेशन शुरू हो गया है, तीसरी जगह पे कुनबी एजिटेशन शुरू हो गया है। अब तो बाकी सब लोग भी कह रहे हैं 96 कुनबे जो हैं मराठों के, वो हर एक कोई कह रहा है कि हम भी अब सड़क पे आने वाले हैं। ये क्या हो रहा है? कि मुझे तो ऐसा लगता है, ये आई डोंट नो इफ आई एम राइट, ये इसका सुधार आप करेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कोई करवा रहा है। वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, ये अपने आप नहीं होता साहब, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है, कोई करवा रहा है साहब इसको। अब उस पर जरा रोशनी डालें मेश्रम जी। सच है बजाज साहब, दिक्कत इस बात की है कि आरक्षण के संदर्भ में मैं वैयक्तिक रूप से कुछ नहीं कहना चाहता जी, पर दिक्कत इस बात की है कि 1947 और 1951 जब देश स्वतंत्र हुआ 47 में और 51 में संविधान लागू हुआ, आज 2023 में स्वतंत्रता के अमृत काल में जब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और यह 75 वर्षों में जिन चीजों के मसले मुद्दे बाहर नहीं आए, आज महाराष्ट्र जैसे कथित पुरोगामी राज्य में अगर 75 साल के बाद में आरक्षण के मसले पर कोई दिक्कतें खड़ी हो रही, एक अनरेस्ट खड़ा हो रहा है यहाँ की 12 करोड़ जनता में, तो यह बहुत अड़चन वाली बात है। हमने देखा 2014 से 2019 तक जब देवेंद्र जी फडणवीस इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब भी मराठा समाज के 100 से अधिक मोर्चे आरक्षण के विषयों पर निकले। आज जब 2.5 साल उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में और शरद पवार साहब के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार चली, तब आपने देखा कि कोई भी मोर्चे विशेष रूप से आरक्षण के मसले पर महाराष्ट्र में नहीं निकले। लेकिन जैसे ही फिर एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी फडणवीस और अभी अजित पवार जी इनके नेतृत्व में महायुति की सरकार महाराष्ट्र में स्थापित हुई, फिर से महाराष्ट्र में आरक्षण का मसला बड़े तेजी से उछाला जा रहा है। यह सरकार के खिलाफ की साजिश है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी फडणवीस साहब इस राज्य की सरकार चला रहे हैं, गरीबों के हित में, इतना ही नहीं तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर में विकास को पुनरुज्जीवित किया गया, विकास के कार्यों को अधोरेखित कर इस महाराष्ट्र को देश की पहली अर्थव्यवस्था बनाने का काम जब चल रहा है, ऐसे परिस्थिति में इस प्रकार के मसले उठाना निश्चित रूप से आपकी बात सच है कि यह साजिश है। और इस साजिश के पीछे कौन है? तो ये दिख रहा है जिनकी जड़ें हिल गई है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जिन्होंने 75 सालों में से 50 साल से ऊपर राज किया है, 35 से 40 साल शरद पवार साहब इस राज्य में ये न केन प्रकार न उनके मार्गदर्शन में काम चलता रहा। बड़ी मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रवादी का जमीनी हकीकत में जमीन, पूरी राजनीतिक जमीन हिल गई है। ऐसे स्थिति में बजाज साहब, नाम्बियार साहब, मैं समझता हूं कि हाँ बोले कोई ना बोले, कोई स्वीकारे न स्वीकारे, इन सब के पीछे शरद पवार साहब और उनकी जो राजनीतिक मंशा है, यह उसके पीछे है। यह घटिया कोशिश है। आज यह भी मतलब आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह साजिश चाहे फिर वो शरद पवार साहब करे या कांग्रेस का कोई धड़ा करे या फिर उद्धव ठाकरे जी की सेना करे, यह कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इस देश का नागरिक
मोदी जी के नेतृत्व में और इस राज्य का नागरिक महायुति सरकार के नेतृत्व में प्रगति मगर मेश्राम साहब निकल पड़ा है। मेश्राम साहब, शरद पवार साहब ने 2 दिन पहले ही कहा कि आपने उनको वचन आपने क्यों बोले कि हम करेंगे करके, 30 दिन का मोहरत आपने क्यों दिया, 40 दिन का मोहरत फिर और बढ़ा के आपने एक्सेप्ट क्यों किया, आपने वादा क्यों किया कि हाँ होगा। शरद पवार साहब का कहना है कि आपने वादा किया, सरकार ने वादा किया है, तो सरकार ने वादा किया तो इसलिए पूरे आंदोलन इस प्रकार से निकल पड़े। बिकॉज हमने देखा दशहरा रैली में भी एकनाथ शिंदे जी अपने ही भाषण रोकते हैं, पूरा जबरदस्त सभा था, और बोले और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू के नीचे वंदन करते हुए फिर ऐलान कर दिया, मैं वचन देता हूं कि मराठा समाज को न्याय। तो शरद पवार साहब वही बोल रहे कि आप वचन क्यों दे रहे हो, आप उनको एग्री क्यों कर रहे हो, आप उनके एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो कि हम करेंगे। तो इसके लिए क्या क्या शरद पवार साहब क्या सही कह रहे हैं कि नाम्बियार साहब, देखिए नाम्बियार साहब, बोलिए सर। इस राज्य के मराठा आरक्षण का मसला रहे या धनगर आरक्षण का मसला रहे या विदर्भ में आए तो हलबा समाज के अनुसूचित जमाती वर्ग में शामिल करने की बात रहे या अन्य मसले रहे या धोबी समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में महाराष्ट्र में शामिल करने का मसला रहे, यह हमको स्वीकारना पड़ेगा कि राज्य सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और प्रयास कर रही है। एकनाथ शिंदे जी ने भी ये कहा, देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने भी ये कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल में मराठा बांधवों को आरक्षण देने का जीआर पारित किया, और इतना सिर्फ जीआर पारित नहीं किया उन्होंने, ऐसा तो महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय में मराठा आरक्षण को संरक्षित करने का भी काम किया। जब 2.5 साल में उद्धव ठाकरे साहब की, शरद पवार जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार आई, सर्वोच्च न्यायालय में, ये सर्वोच्च न्यायालय के रिकॉर्ड पर आया हुआ है कि 11 तारीखों में एक भी बार तत्कालीन महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने एक भी बार सर्वोच्च न्यायालय में इस आरक्षण के मसले को लेकर कोई बात नहीं की। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने इनको कई बार संधियां दी, चांसेस दिए, उसके बावजूद अगर महाविकास आघाड़ी सरकार अपने तरीके से काम नहीं कर पाई तो इसके लिए दोषी कौन है? अगर अभी ये सब चीजें निकल पड़ी है तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से ही सभी आरक्षण मांगने वाले बंधुओं से आह्वान करता हूं, विनंती करता हूं कि उन्होंने सरकार के पास में सही समय देना चाहिए, क्योंकि इतने आसानी से मसले हल नहीं होंगे। और शरद पवार साहब ने जो कहा है यह मनगढ़ंत है। सरकार ने यह नहीं कहा, सरकार ने यह कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, हमें समय दिया जाए। सरकार ने कोई टाइम लिमिट में किया जाने वाला यह कार्य नहीं है। यहां आयोग बनाना पड़ेगा, यहां सामाजिक और आर्थिक राजकीय दैनावस्था देखी जाएगी, उनकी जांच की जाएगी, उस प्रकार से रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, उसके बाद में आरक्षण अधोरेखित होगा और आरक्षण अस्तित्व में लागू होगा। ऐसे स्थिति में सिर्फ और सिर्फ लेकिन जो एजिटेट कर रहे हैं सर लोग, लेकिन जो एजिटेट लोग कर रहे हैं, और यहाँ तक के मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी ने भी माना है कि 30 दिन का टाइम उन्होंने खुद बोला था, और साहब ने, जरंगे पाटिल साहब ने कहा आप 10 दिन और ले लीजिए, 40 दिन का टाइम, ये तो एडमिटेड है ना। तो ये बोलने की आवश्यकता क्या थी, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बजाज साहब आपकी बात सही है, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब ने यह नहीं कहा कि हमें 30 दिनों के अंदर मैं आरक्षण जिस प्रकार से लागू किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, उस प्रकार का आरक्षण दे पाऊंगा। देखिए, बातें पकड़ने वाली बात हो गई। आप व्यवहारिक है, आप कानून के ज्ञाता है। यहां जो मांगने वाले जो लोग हैं, आरक्षण की मांग रखने वाले लोग हैं, उनमें भी कानून जानने वाले लोग हैं जी। जब यह सब चीजें इतने कम समय में जो चीजें नहीं हो सकती, उस विषय के संदर्भ में किसी एक मुख्यमंत्री जी के मुंह में स्टेटमेंट डालकर इस बात को अधोरेखित करना, यह उन मुख्यमंत्री जी के लिए न्याय नहीं होगा। बजाज साहब, मैं समझता हूं कि जो लोग ये समझते हैं, कानून को जानते हैं, इन यहाँ की अड़चनियों को, यहाँ के परिस्थितियों को जानते हैं, उन्होंने समय देना चाहिए और स्वयं आगे आकर सर्वोच्च न्यायालय रहे, राज्य सरकार रहे, केंद्र सरकार रहे, इनके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के साथ में बात करनी चाहिए। तब जाकर
मराठा बंधु रहे या और भी महाराष्ट्र के अन्य समाज के लोग रहे जिन्हें जिन्हें आरक्षण की चाहत है, तभी ये बात आगे जा सकती है। ऐसा मैं पूरी विनम्रता के साथ आपके लेकिन एक बात तो है प्रदीप जी, लेट मी रिकॉल फॉर आवर व्यूअर्स, अपने व्यूअर्स के लिए मैं जरा रिकॉल करना चाहता हूं। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट केम आई थिंक ऑन द 6th of November if I am not mistaken 2021 को, where they said that this is ultra vires of the 102nd amendment of the Constitution of India, बिल्कुल, which imposes a 50% limit on reservations. After that, if I am not mistaken, the Devendra Fadnavis, Eknath Shinde government came to power in August 2022. So what are we looking at? November, December, and 8 months. So that's 10 months. वो जो 10 महीने थे जब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, चलो उसके पहले तो ये कह सकते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में है मैटर, तो इसलिए कोई एजिटेशन नहीं है। आपकी बात यहाँ, आप आई वांट टू पिक योर ब्रेन्स ओवर हियर। इन 8 महीनों में एक भी एजिटेशन नहीं हुई। जब एमबीए की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन के रिजेक्ट करने के बाद 8 महीने तक एमबीए की सरकार चली है। एकनाथ शिंदे जी की सरकार और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार 8 महीने के बाद आई है। उन 8 महीनों में एक भी एजिटेशन नहीं हुई। तो आपकी बात में जरा कुछ लग रहा है मुझे कि क्या, और दूसरी चीज क्या है कि अगर आप जितनी भी एजिटेशन हुई हैं महाराष्ट्र में कुछ 30 सालों में, 30 के 35 सालों में अगर आप देखें, जब भी शरद पवार साहब विपक्ष में होते हैं, विरोधी दल में होते हैं, ये एजिटेशन तभी क्यों होती है? जरा इस पर रोशनी डालें ना सर। बजाज साहब, बड़ी विनम्रता के साथ यह बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि शरद पवार साहब जब जब विपक्ष में रहते हैं तब सिर्फ एजिटेशन नहीं होती है। जब जब वो अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं होते हैं और दुर्दैव से उन्हें दिल्ली भेजा जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तब भी दिक्कतें महाराष्ट्र में खड़ी होती है, क्योंकि वो ये न के न प्रकार है, कोई भी कारण से महाराष्ट्र छोड़ना नहीं चाहते। मैं आपको इतिहास के उन पन्नों में ले जाना चाहता हूं। जब पवार साहब केंद्र में संरक्षण मंत्री थे जी, महाराष्ट्र में बॉम्ब स्फोट हुए थे जी, सुधाकर राव नाईक जी मुख्यमंत्री थे जी, शरद पवार साहब तब कांग्रेस में हुआ करते थे और उन्हें फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कुर्सी का मोह रहा और उन्होंने संरक्षण मंत्री पद त्याग कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को स्वीकारा, प्राथमिकता दी। यह किस बात को दर्शाता है? आप देखिए कि महाविकास आघाड़ी के 2.5 साल के कार्यकाल में एक भी एजिटेशन नहीं हुआ मराठा विषय के आरक्षण के संदर्भ में। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में अगर 11 बार तकरीबन हर महीने अगर 2 तारीख हम पकड़ते तो 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने तक कोई भी प्रकार की बाजू महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन महाविकास आघाड़ी के लॉयर्स ने, लोगों ने, राज्यकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने कोई बाजू नहीं रखी। उसके बाद में जब निर्णय आया, वर्डिक्ट आया सर्वोच्च न्यायालय से, उसके बाद में भी कोई भी आंदोलन मराठा बांधवों का नहीं हुआ। आज जब एकनाथ शिंदे जी का, देवेंद्र जी फडणवीस जी के पुढाकार से सरकार महाराष्ट्र में स्थापित हुई, मराठा आरक्षण को लेकर चर्चाएं शुरू हुई, आंदोलन शुरू हुए। और आंदोलन भी ऐसे नहीं है, यह सरकार की नींव हिलाने वाले, उनको जेरिस लाने वाले जो बात हम कहेंगे कि इस सरकार को यह लोग चारी के शुक्राचार्य, जिन्हें विकास की राजनीति मंजूर नहीं है, जो जातिगत दलगत राजनीति के लिए उनका मादा तैयार हुआ है, ऐसे लोग यह सरकार की नींव हिलाने के लिए इस मसले को उठा रहे, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। आज प्रियंका गांधी जी ने बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि व्हाई डिड इंडिया अब्सटेन फ्रॉम यूएन रेजोल्यूशन, फ्रॉम वोटिंग इन द यूएन रेजोल्यूशन। धर्मपाल जी, प्रियंका गांधी का कहना है कि महात्मा गांधी का देश है, आपने कैसे अब्सटेन कर दिया। फिर वो महात्मा गांधी जी का कोट वो ट्वीट करती है कि एन आई फॉर आई मेक्स द होल वर्ल्ड गो ब्लाइंड। बोले कि ये मोदी साहब ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था।
Israel's right to strike, Israel's right to retaliate, और हमास को निंदा करना फिर पर, बट एब्सटेनेंस पे प्रियंका गांधी जी ने पहली बार ऐसे इंटरनेशनल इशू पर सरकार को खटगरे में आलोचना करने लगा। इसको आप कैसे देखते हो प्रियंका गांधी जी? सबसे पहले तो नाम्बियार साहब, मैं प्रियंका गांधी जी को शुभकामना देता हूं। जिन जिन राज्यों में प्रियंका गांधी जी की चुनाव सभा हुई है, उन राज्यों में गलती से भी कांग्रेस की सरकार नहीं आई है, क्योंकि भारत देश की राजनीति इस प्रकार से परिपक्व हुई है कि अभी यहां का आम मनुष्य जानता है कि किस दिशा में देश को ले जाना है। जब भी हमने देखा कि प्रियंका गांधी जी और दुर्दैव से राहुल गांधी जी में भी पॉलिटिकल परिपक्वता कोई भी प्रकार की नहीं आई। अगर आज हम यहां इजराइल पैलेस्टीनी के मसलों पर हम बात करेंगे, तो आज सारा यूरोप और सारा भारत या कोई भी लोग अगर पैलेस्टीनी का समर्थन करते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे, या हमास जैसी संगठना कोई देश की स्वतंत्रता पर हल्ला बोलती है, यहां 5000 तोप गोले फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में बरसाती है, उस देश की स्वतंत्रता पर हल्ला करती है, ऐसे हमास संगठन का समर्थन भी करने का काम बड़े दुर्दैवपूर्ण तरीके से मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि कांग्रेस ने किया है। अब यह कौन सी नीति है? यह देश गांधी जी का निश्चित रूप से है, लेकिन सिर्फ गांधी जी का देश नहीं है। यह देश नेहरू जी का भी है, इंदिरा गांधी जी का भी है, हमने कब नकारा। यह देश डॉक्टर अंबेडकर जी का भी है, यह देश समाजवादियों का भी है, यह देश सिर्फ किसी एक आदमी का नहीं, 142 करोड़ आबादी का है। और जब कोई भी देश की स्वतंत्रता पर, अखंडता पर, सार्वभौमत्व पर हल्ला बोला जाएगा, भारत देश की नीति बनती है, प्राथमिकता बनती है कि ऐसे कार्यों के खिलाफ में उन्होंने खड़ा होना चाहिए जो मोदी जी ने किया। बड़ा भैया बेशम साहब, एक मिनट, एक सेकंड, सर करेक्शन, छोटा सा करेक्शन, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए। प्रियंका गांधी जी ने जो कहा, शायद उनको पूरी जानकारी नहीं थी। भारत सरकार का निर्णय टू एब्सटेन फ्रॉम द यूएन रेजोल्यूशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट, वो प्रेरित इस चीज से था कि उस पूरे रेजोल्यूशन में इजराइल के ऊपर आतंकवादी हमले का कोई जिक्र नहीं था, सिर्फ वो एक फिलिस्तीनियों के समर्थन में रेजोल्यूशन था। तो हमारी जो डेलीगेशन है, भारत की जो डेलीगेशन है यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने कहा कि ये लाइन होनी चाहिए, इसमें हमास का धिक्कार हो, जो आतंकवादी गतिविधि 7 अक्टूबर को की गई, जहां बच्चों को मारा गया, छोटे छोटे बच्चों के गर्दन काटे गए, 260 स्टूडेंट्स जो हैं उनको मार दिया गया, 1260 के 1300 लोगों को, निहत्थे लोगों को बेरहमी से काट काट के फेंक दिया गया, उसका भी जिक्र होना चाहिए। वो अगर जिक्र नहीं है तो ये बैलेंस्ड रेजोल्यूशन नहीं है। सो वी आर एब्सटेनिंग। मेश्राम साहब। बजाज साहब, आपने जो कहा, फिर उसी मैंने जो पिछले समय में कह रहा था उसी बात पर आना पड़ेगा कि कांग्रेस की राजनीति रही है, उन्होंने अपने शासनकाल में, सत्ता काल में इजराइल की स्वतंत्रता को स्वीकारा नहीं। यासर अराफात से लेकर जो भी पैलेस्टीनियन लीडरशिप थी, उनके साथ इंदिरा जी से लेकर तो राजीव जी तक का जो कार्यकाल रहा है, पूरा का पूरा उनके साथ रहा है। लेकिन देखिए, इजराइल की स्वतंत्रता को, अखंडता को, सार्वभौमत्व को आप अगर नहीं स्वीकारते तो मैं समझता हूं यह एक सार्वभौम देश के लिए और भविष्य में हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर जिस प्रकार से हमास जैसे आतंकवादी संगठन ने जिस प्रकार से इजराइल पर हमला किया, कल देखिए, यह अंतरराष्ट्रीय मसलों पर बहुत ही बारीकी से सोच समझकर देश के सत्ताधारी रहे या विपक्ष के लोग रहे, उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए। अगर इस प्रकार का नहीं हुआ तो कल हम भी कैची में हैं। जब पीओके है,
उधर पाकिस्तान है, अभी चाइना का भूत हमारे सर पर बैठा हुआ है। ऐसे समय में अगर हम लोग इसी प्रकार से सिर्फ दलगत और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस प्रकार के बयान देंगे तो यह हमारी देश की स्वतंत्रता और सार्वभौमत्व के लिए भी भविष्य का धोखा साबित होगा। और यह कांग्रेस ने किया है। देखिए, प्रियंका जी रहे या राहुल जी रहे, मैंने पहले ही कह दिया कि इनको पॉलिटिकल समझ या मैच्योरिटी इतनी नहीं है। यह देश के लोग भी जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी जानते हैं। यह सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति जानते हैं, किसी एक कौम को खुश करने के लिए और अपना वो समाज में वोट बेस बढ़ाने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट्स इशू कर, इस प्रकार के जाहिर भाषणों में अपने मुद्दों को उछालकर वह तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे मसलों पर बहुत ही शांततापूर्ण, गंभीरता से सोच समझकर ही पक्ष विपक्ष रहे या सत्ताधीश रहे, इन लोगों ने अपनी बात रखनी चाहिए, ऐसा ही मैं मानता हूं। मेश्राम साहब, और प्रियंका गांधी ने और एक कैंपेन शुरू कर दिया, कल से लगातार चालू है। बोले मोदी जी लिफाफा खाली है, मोदी जी एनवेलप इज एम्प्टी। एनवेलप, वो लिफाफा में बोले कि जो लिफाफा आपने प्रॉमिस किया था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं की, तो 2 करोड़ आपने प्रॉमिस किया था। जातीय जनगणना एब्सोल्युटली नेसेसरी, वहां पर लिफाफा खाली है, उसमें जातीय जनगणना भी नहीं है। तो प्राइस राइज, फार्मर्स इश्यूज, फार्मर्स डबल इनकम। तो प्रियंका गांधी फिर ये चालू कर दिया है कि लिफाफा खाली है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लिफाफा खाली है। मेश्राम जी, हाउ आर यू गोइंग टू काउंटर दैट? प्रदीप जी, मोदी जी ने अपने 9 साल की सत्ता काल में जो चीजें इस देश को दी है, इस देश के 142 करोड़ जनसंख्या को दिया है, क्या इस देश का एक आम जन नकारेगा? पूरे कोरोना काल में उठाकर देख लीजिए, शेतकरी सम्मान निधि से लेकर यह देख लीजिए, कोरोना की लस देख लीजिए, 80 करोड़ जनता को दर माह हर प्रति आदमी 5 किलो राशन देने की बात देख लीजिए। इस देश की अर्थ कारण को 8वें, 9वें, 10वें नंबर से 5वें पायदान पर लाकर खड़ा करने की बात कर लीजिए। यह सारी चीजें किस और इंगित करती है, क्या दर्शाती है? मोदी जी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में जितना काम किया है, शेतकरी फार्मर्स को लेकर 5.6 गुना 2014 की तुलना में एमएसपी का भाव दिया है। हर साल 6,000 रुपए शेतकरियों के खाते में, फार्मर्स के अकाउंट में बिन दिक्कत मोदी जी ने जमा कराया है। यहां 200 करोड़ आबादी को कोरोना की लस दी है। और इतना ही नहीं, विकास के कार्यों पर अर्थ नीति रहे, शिक्षा नीति रहे, विदेश नीति रहे या इस देश को सामाजिक न्याय दिलाने वाली नीति रहे, मोदी जी ने जिस प्रकार का काम किया है उसकी कोई तोड़ नहीं है। अगर प्रियंका जी को कोई भी पॉलिटिकल समझ है तो मैं सिर्फ आपके माध्यम से कांग्रेस की सारी व्यवस्था को आह्वान करता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में और मोदी जी के कार्यकाल की तुलना सिर्फ बस कर लीजिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जनता के पक्ष में, जनता के लिए कौन से काम किया है। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर कांग्रेस उठ नहीं पाई। लेकिन मेश्राम जी, यही सब चीजें आपके जितने भी नेता हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, सब लोगों ने हिमाचल प्रदेश में भी बताए, सारी उपलब्धियां आप लोगों ने गिनाई, कर्नाटक में भी आपने सारी उपलब्धियां गिनाई, हिमाचल भी आप हार गए, कर्नाटक भी आप हार गए। तो जहां तक राज्य सरकारों के चुनाव का प्रश्न है जो अगले महीने होने वाले हैं, क्या ये उपलब्धियां आप लोगों के साथ काम नहीं कर रही हैं? क्या उनको लुभा नहीं रही हैं? क्या हो रहा है मेश्राम बजाज साहब जी? बजाज साहब, सच बात तो यह है, देखिए हिमाचल प्रदेश का राज्य की आबादी कितनी है, वहां पर सरकारी नौकरी में लोग कितने हैं, पुरानी पेंशन का जो मसला खड़ा हुआ था जी, यस, वहां के जो पॉलिटिकल सिनेरियो, वहां की समस्या है, वहां की भौगोलिक, राजकीय, आर्थिक पृष्ठभूमि, यह अलग अलग मसले हैं।
कर्नाटक के बारे में अगर हम कहेंगे तो वहां की स्थिति भी इसी प्रकार की है। तो यह चुनावी विश्लेषण अगर बजाज साहब हम लोग करेंगे तो हार के कारण हमारे स्पष्ट है। निश्चित रूप से जिन राज्यों में हमारी हार हुई है हम बड़े मन से स्वीकारते हैं, उसका विश्लेषण भी करेंगे और जीत कर आने वाली पार्टी को हमने शुभकामनाएं भी दी है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जिन आश्वासनों के बलबूते हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने जीता, क्या वह आश्वासन वे पूरे कर पाए इतने कार्यकाल में? या कर्नाटक में जिन 5 मुद्दों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और जीता, क्या 5 मसलों में से 1 या 2 मसले भी वो पूरे कर पाए? तो बजाज साहब, दिक्कत ऐसी है कि यह देश की आबादी आज भी जितनी शिक्षितता, जितनी समझ जो होनी चाहिए, वह पूरी तरीके से कभी कभी लोक लुभावन नारों में काम करती है और इस प्रकार से असली विकासी राजनीति के लिए वो मात भी साबित होती है। मैं समझता हूं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां होने की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती है, लेकिन एज ए नेशन एंड ए नेशन मोदी जी के नेतृत्व को आज तारीख में कोई भी चैलेंज है ऐसा मुझे लगता नहीं है। और निश्चित रूप से मोदी जी जिस प्रकार से इस देश को जिस गति से प्रगति के राह पर ले जा रहे हैं, निश्चित रूप से मोदी जी की जीत निश्चित है। ये जबरदस्त कैंपेन है सर, मैं मानता हूं ये बहुत जबरदस्त कैंपेन है। सब लोग इस कैंपेन से आपने जो अभी बोला है, सब लोग प्रोत्साहित होंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए राज्यों में जो चुनाव होने वाला है, वहां नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। वहां आपके जो स्थानीय नेतृत्व है उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा ना सर। तो वो लोग कहां हैं? मिशन बजाज साहब बात सही है जी। देखिए, मैंने कहा कि हर राज्यों की भौगोलिक, राजकीय, सामाजिक परिस्थितियां अलग अलग है, उसी प्रकार से नेतृत्व की परिस्थितियां भी अलग अलग है। यह सच है, हमने स्वीकारना चाहिए कि हर राज्यों में हमारे पास मोदी जी नहीं है। मोदी जी राष्ट्र के नेता है, मोदी जी हमारे आइकॉन है, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है, वो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देश के नेता है। लेकिन हमारी दिक्कतें भी है, लेकिन जो परिस्थितियां है जैसी जैसी है वैसे वैसे उसका सामना हमको करना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो भी लीडरशिप राज्यों में भी तैयार हुई है, वह एक अंडर कंट्रोल चलती है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं देश की जनता और राज्य की जनता भी अब सच्चाई समझने लगी है, भांपने लगी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले जो चुनाव में हमें हार मिली है, जिन्होंने जीत मिली है, उन्होंने एक भी आश्वासन पूरा नहीं कर पाई बजाज साहब जी। कर्नाटक की वही स्थिति वही है। तो मैं समझता हूं आने वाले 5 राज्यों की जनता भी यह बात भली भांति जानती है, समझती है और निश्चित रूप से मोदी जी के पक्ष में और स्थानीय मेश्राम साहब छोटा सा मेश्राम साहब वोट मिलेगा। महाराष्ट्र में अभी आलोचना होने लगा है, देव फडणवीस जी ने कहा कि वी आर नंबर 1 स्टेट वेयर डेवलपमेंट इज कंसर्न, बिजनेस इज कम बैक। जो 10 नंबर 10 से नंबर 1 पर महाराष्ट्र आ गया है, इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट है। मगर आज जितेंद्र आव्हाड जी उसको बोल रहे कि डायमंड मार्केट हैज मूव टू सूरत, डायमंड मार्केट सूरत चला गया है, फिर बिजनेस बाहर जाने लगा है। ये सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रहा है जो मूवमेंट ऑफ बिजनेस आउट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस पे शॉर्ट में कुछ बोलेंगे आप? नाम्बियार साहब, यह झूठ का पुलिंदा महाराष्ट्र की राजनीति में दुर्दैव से परोसा जा रहा है। नाना रिफाइनरी से लेकर फॉक्सकॉन वेदांता से लेकर अब यह जेम्स और डायमंड मार्केट के संदर्भ में यह झूठ का पुलिंदा परोसने का काम ये लोग कर रहे हैं। समाज माध्यम प्रिंट मीडिया ये इतना अभी हावी है कि यह विकास की राजनीति से परे उठकर यह लोग यहां की जनता को फंसाने के लिए लगे हैं। जितेंद्र आव्हाड जी की विश्वसनीयता क्या है? जितेंद्र आव्हाड जी की पॉलिटिकल समझ क्या है? अगर वो सच कहते तो उन्होंने आमने सामने आकर बात करनी चाहिए। कोई अपने घरों से अपना एक अकेला स्टेटमेंट देकर अगर वो चाहता है कि उसी स्टेटमेंट को लिफ्ट करते जाएंगे अपने माध्यमों के, अपने एजेंटों के माध्यम से, तो यह राज्य की जनता देख रही है। मैं समझता हूं वह जागरूक है। ऐसे ढकोसले चीजों में वह निश्चित रूप से नहीं आएगी। आज देखिए, देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने यह सच कर दिखाया कि यह 2.5 साल के महाविकास आघाड़ी के सरकार के बाद में आज आप आंकड़ेवारी देखिए,
फिगर्स देखिए कि महाराष्ट्र फिर से पहले नंबर पर इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स में आया हुआ है। तो यह और आर्थिक रूप से भी महाराष्ट्र पहले नंबर पर आया है। तो यह सच है। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर अवार्ड साहब को मैं खुली दावत भी देता हूं कि उनके मन में जितने प्रश्न है आप ही उनको मेरे सामने ले आइए, मैं उनसे आमने सामने आप जिस प्लेटफॉर्म पर बोलिए, जिस फोरम पर बोलिए, मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। आप पुढाकार लीजिए। क्या बात है सर, वंडरफुल। Thank you so much, Mesham साहब, all the very best to you. Thank you very much. Great pleasure talking to you, sir. और बहुत दिनों बाद आप मिले जी, नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Right, and at the moment with us, of course, we have our old friend from the Congress, but before we go to him, the fact is that there is no credible answer for the fact that Mr. Modi is not going to be chief minister of the state. He's not going to be running the state. He is not. You know, so you need a strong leadership. You need, so there is no decentralization of powers where the BJP is concerned. So Congress has a very strong leadership. बिल्कुल। कांग्रेस की लोकल लीडरशिप जो है, स्थानीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का बहुत जबरदस्त है साहब, उसके सामने बीजेपी फेल होती हुई दिख रही है सर। और गरीब कल्याण योजनाएं जो लेके जा रहे हैं, 8 वचन, 9 वचन, 10 और, वचन। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है, हर एक का जवाब यही है, क्या कर्नाटक में मतलब जो वादे किए गए थे क्या हो गए पूरे? अरे अभी तो सरकार आई है भाई, 1-1.5 साल तो होने दीजिए, उसके बाद उसका एनालिसिस होगा ना, या 1 साल के बाद होगा कि भाई यहाँ पे ये वादे किए गए थे और वो हुए कि नहीं हुए। ऐसे तो मोदी जी ने भी कितने वादे किए, उसमें से ना जाने कितने जो है वो पूर्ण हुए, और बहुत सारे जो हैं उनके ऊपर अभी काम भी शुरू नहीं हुआ है। जैसे 100 स्मार्ट सिटीज की जो बात थी, कितने स्मार्ट सिटी बन गए सर? Let's be very clear. So I think the BJP has been caught out over there a little bit. So they don't have a proper answer for what's happening in states. सेंटर में ठीक है, आपने पूरे जो रिपोर्ट कार्ड लेके आप जो घूम रहे हो, अनबीटेबल रिपोर्ट कार्ड, जो इंटरनेशनल रिलेशन और घर घर नल से जल से उछल, बट स्टेट आपका क्या कर रहा है? वेयर इज स्टेट लीडरशिप? सर नल से जल की जैसे हम लोगों ने बात करी थी कल, आज भी वसई विरार में नल से जल कहाँ है सर? अभी भी टैंकर माफिया वहां पे रूल कर रहा है। और तो और छोड़िए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता साहब जो थे, वेरी 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 आर्टिकुलेट, लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, वेरी आर्टिकुलेट एंड वेरी पैशनेट यंग मैन, ही सेड के जब आप उसके ऊपर प्रोग्राम करें और आंदोलन करें, मैं आपके साथ हूं। सो माय पॉइंट इज दैट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट शो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। यू जस्ट कांट ट्रीट एवरीबडी विद कंटेम्प्ट। एक ज़माना था कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल नकार देती थी भारतीय जनता पार्टी को कि ये कौन सी पार्टी है, 2 सीटों वाली पार्टी है। आज की तारीख में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कंसेक्यूटिवली 2 बार लगातार पावर में आई है। और वही चीज़ जो अहंकार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रस्तुत करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रति प्रस्तुत कर रही है, विच इज़ गुड फॉर द कांग्रेस, very frankly speaking, so they can work under the